دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 14 پیش کشمیر کارواں۔ میں نے چودھری نواز کو کڑی تاکید کی تھی کہ ٹھیک 7 بجے ساحل کو پارک میں پہنچ جانا چاہیے، اور میں نے بھی وہی کیا تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ وعدہ خلافی پر اتر آیا تھا۔ ایک طرح سے وعدہ خلافی میں بھی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے دوسری پارٹی بھی بے حد محتاط ہو۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر عباس اور زمرداں میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ بنادھا نے انہیں میری ہدایت پہنچا دی تھی۔ 1 منٹ کے بعد دشمن کے نگران بھی غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس بھرے پورے پارک میں میرے سوا اور کوئی موجود نہ ہو۔ میں نے خود کو اندر سے تنہا پایا۔ مجھے اس سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ وہ احساسات ساحل کے وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے تھے۔ میں بے چین ہو کر یک لخت بینچ سے اٹھ گیا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں ایک انجانا سا اضطراب پھیلا ہوا محسوس ہوا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ساحل کا وہاں نہ پہنچایا جانا حالی از علت نہیں تھا۔ ان حالات میں پارک میں زیادہ دیر تک رک کر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی اقدام اٹھانا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ پارک کے باہر فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر اس سمت میں دیکھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں گرین ہائی روپ میں شہزاد فیصل کے ساتھ موجود تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں پہ سنگین واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر پارک کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ فائرنگ کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی گاڑی کی تیزی سے آگے بڑھنے کی صدا بھی بلند ہوئی تھی۔ میں ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے پارک سے باہر نکل آیا۔ اسی لمحے میری نگاہ گرین ہائی روف پر پڑی۔ شہزاد بیک گیئر میں اسے گیٹ کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے گولی کی رفتار سے دوڑ کر گیٹ اور ہائی روف کے درمیانی فاصلہ طے کیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھل کر گاڑی کے اندر پہنچ گیا۔ شہزاد نے ایک تشویشناک نظر مجھ پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے گرین ہائی روف کو آگے بڑھا دیا۔ اس وقت وہ کسی عقاب کی مانند فعال دکھائی دیتا تھا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ فیصل وہاں موجود تھا۔ شہزاد نے اضطراری لہجے میں مجھ سے کہا کہ گن اٹھا لو، وہ لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں ڈرائیونگ سے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم فائرنگ سے انہیں روکو۔ اگر وہ لوگ ہمارے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے کلاشنکوف کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ ایک نیلی پجارو بڑی ہی تیزی سے ہمارے تعاقب میں تھی۔ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں ہی ہمیں چھونا چاہتی تھی۔ میں نے سانس روکے گاڑی کے اگلے پہیوں کو نشانہ بنا کر نیچی فائرنگ کی۔ اس عمل کے نتیجے میں مجھے ہائی روف کی کھڑکی سے اوپری دھڑ باہر نکالنا پڑا۔ یہ فائرنگ بے نتیجہ رہی، مگر حیرت انگیز طور پر پجاروں میں سے ہم پر گولیاں نہیں برسائی گئیں۔ میں نے شہزاد سے کہا وہ لوگ براہ راست ہمیں نشانہ نہیں بنائیں گے کیونکہ فیصل ہم دونوں کے بیچ موجود ہے۔ وہ اس کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتے۔ تم ڈرائیونگ اور سپیڈ پر توجہ دو۔ پجاروں والے ہائی روف کے ایک بھی ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم رکنے پر مجبور ہو جائیں۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ ہی کی تھی یا پھر گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ شہزاد نے رفتار بڑھاتے ہوئے میری تائید کی۔ میں فیصل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تم گاڑی کے ایک بھی حصے میں چلے جاؤ تاکہ انہیں روکنے میں آسانی ہو۔ میں نے سیٹ کے اوپر سے سلائیڈ کیا اور بمشکل ہائی روف کے ایک بھی حصے میں پہنچ گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چودھری نے میرے ساتھ کھلا دھوکہ کیا تھا۔ ساحل کو میرے حوالے کرنے کی بجائے اس نے فیصل کو چھیننے کی پلاننگ کی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے یقیناً پارک کے باہر اپنے بندوق کا جال پھیلا دیا ہوگا اور انہی میں سے کسی کی نظر گرین ہائی روف میں بیٹھے فیصل پر پڑ گئی ہوگی۔ شہزاد کا ذہن بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ گمبھیر آواز میں اس نے بتایا کہ ہمارے دشمن خفیہ طریقے سے پارک کے بیرونی حصوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے غیر معمولی نوعیت کی سرگرمی دیکھی تو ہوشیار ہو گیا۔ پھر اس سے قبل کہ میں تم تک کوئی اطلاع پہنچاتا تو وہ لوگ مجھے گھیرنے لگے۔ مجھے روکنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اسی فائرنگ نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پجارے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ شہزاد کے لہجے میں تشویش تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے عقبی منظر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس نیلی پجاروں کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے 2 اور گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے تیور بھی بڑے ہی خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ فیصل نے غصیلے لہجے میں کہا تم لوگ اپنی موت کا دعویٰ دے رہے ہو۔ میرے آدمی جہنم تک تمہارا تعاقب کریں گے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً گاڑی روک دو۔ ہمارا جہنم کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نے شفاقی سے کہا، اور اگر تم نے زبان بند نہ کی تو تمہیں اس جانب پارسل کرنا پڑے گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کینہ تو نظر سے مجھے گھور کے رہ گیا۔ شہزاد نے کہا چلو یہ اچھا ہوا تم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ تعاقب کرنے والے پیچھے گاڑیوں میں تمہارے بندے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دو کہ وہ جے ڈی ملک کے بھیجے ہوئے ہیں یا پھر ان کا تعلق شعیب گوری کے بندوں سے ہے۔ یہ تو ایک ہی تھیلی کے ویسے چٹے بٹے ہوئے۔
इससे पहले कि फैसल को जवाब देता, ग्रीन हाई रूफ बड़े ही खतरनाक अंदाज में लहराई। अकब से एक मरतबा फिर हमारी गाड़ी को फायरिंग से निशाना बनाया गया था। हाई रूफ के टायर तो ब्रस्ट होने से महफूज रहे, ताहम चंद गोलियां गाड़ी में लगी और एक गोली ने बैक स्क्रीन में अच्छी खासी मिजाज पुरसी कर डाली थी। शीशे के दर्जनों महफूज टुकड़े मेरे ऊपर भी आन कर गिरे थे। मैंने गर्दन को झुकाए हुए क्लाशनकोफ सीधी की और पिजारो के अगले टायरों को एक मरतबा फिर निशाना बनाया। मेरी कोशिश किसी हद तक कामयाब हुई और पिजारो के सामने वाला एक टायर नकारा हो गया। वो सड़क पर बुरी तरह लड़खड़ाई और ड्राइवर ने इसे साइड पर रोकने की कोशिश की। एक टांग तोड़वाने के बाद पिजारो वाले हमारा ताकुब जारी नहीं रख सकते थे। मैं अकब में नजर जमाए रेड अलर्ट बैठा हुआ था। पिजारो के पीछे आने वाली दो गाड़ियों में से एक वहीं रुक गई और दूसरी ने ताकुब का फरीजा संभाल लिया। सुजुकी जीप पिजारो की मदद के लिए वहीं ठहरी थी, जबकि टोयोटा हाइलक्स ने हमारी गर्द पाने के लिए अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया था। हम उस वक्त डीएचए के क्लब में आंख मचोली खेल रहे थे। इस इलाके की सड़कें कम मसरूफ थीं और ज्यादा साफ हैं, लिहाजा इस खूनी दौड़ के नतीजे में कोई बदअमनी पैदा नहीं हो रही थी। टोयोटा हाइलक्स किसी तूफानी रफ्तार से हमारा पीछा कर रही थी, इसलिए शहजाद मुसलसल एक सड़क पर उसे रखने की बजाय बार बार पटरी बदल रहा था। हम लोग जिन हालात से गुजर रहे थे उनमें किसी फैसले तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था और फौरी तौर पर यह नहीं सोचा जा सकता था कि हमें किस मंजिल पर पहुंचना है। हमारे हद्दुल इम्कान कोशिश यही थी कि किसी तरह ताकुब करने वाले को डांच देने में कामयाब हो जाएं, और ये कोशिश कुछ ज्यादा बारावर होती नजर नहीं आ रही थी। हाइलक्स बदतरीज फासला कम करते हुए हमारे करीब से करीब तक पहुंच रही थी और मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद शहजाद हाईरूफ को एक गली की जानिब ले आया। अब हम हियाबान हाफिज रोड पर दौड़ रहे थे। सऊदी एम्बेसी, हियाबान शमशीर, इन सबको पीछे छोड़कर हम हियाबान बहरिया से आगे बढ़ रहे थे और अब हमारा रुख समुद्र की तरफ हो गया था, क्योंकि ये इलाका कम आबाद और हादसा खुला हुआ था और इस वक्त तो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। मैंने शहजाद से कहा, ये अच्छा मौका है, ये इलाका और मलगजा अंधेरा हमारा साथ देगा। किसी तरह इन शैतानों से पीछे छुड़वाने की कोशिश करो। अगर हमने अभी हमारी बात अधूरी रह गई। उसी वक्त हाइलक्स ने हाईरूफ के एक भी टायरों पर एक ब्रस्ट फायर किया। जवाबन मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर फायरिंग कर दी। ये दो तरफा फायरिंग बेनतीजा साबित हुई। इन दोनों में से कोई भी रुकने पर मजबूर न हुई। मैं दोबारा फायरिंग का इरादा कर ही रहा था कि हाइलक्स के आगे में मुझे एक पुलिस मोबाइल दिखाई दी। वो बड़ी तेज रफ्तारी से हमें चेस कर रही थी। पता नहीं पुलिस वाले कब हमारे पीछे लग गए थे। मेरी निगाह में वो अभी आए थे। ये एक सनसनीखेज और खतरनाक सूरत हाल थी। शहजाद भी पुलिस मोबाइल को देख चुका था और तशवीशनाक लहजे में बोला, हम तो बुरे फंस गए। ये उल्लू के पट्टे कहाँ से नाजिल होगी। हम जिस किस्म के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं वो इन्हें दावत देने के मुतरादिफ है। मैंने अगवी सूरत हाल को निगाह में रखते हुए कहा, ओखली में सर डाल दिया है तो मोसले भी आएंगे। वजदान, हमें सबसे पहले पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना होगा। शहजाद की आवाज में बौखलाहट थी। मैं सर पीट कर रह गया। बेदहानी में वो बहुत ही गजब ढा गया था। फैसल ने चौंक कर मुझे देखा और हैरत भरे लहजे में कहा, तुम सहेली हो या वजदान? शहजाद से बौखलाहट में जो गलती सरजद हुई थी उसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं फैसल को एक तवील इंटरव्यू देने बैठ जाऊं। मैंने उसे झाड़ पिलाते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम सुहेल और वजदान के चक्कर में ना पड़ो। मैं हर सूरत में तुम्हारा बाप हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी जबत का बंधन टूट गया। मैंने उसके गाल पर उल्टा तमाचा रसीद किया और होनहार लहजे में कहा, मैंने तुम्हें नसीहत की थी कि अपनी नापाक जुबान को बंद रखना, लेकिन लगता है किसी और से निपटने से पहले तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे वजदान। उसके अल्फाज में धमकी का शायबा था। मैंने नफरत अमीज लहजे में कहा, और तुम्हारा बाप किसी भी अच्छे सलूक का मुस्तहिक नहीं है। हर मसलहत को बलाए ताक रखकर मैं उससे बाहसीयत वजदान बात कर रहा था। मैंने तो यही चाहा था कि तुम्हें चौधरी नवाजिश के हवाले कर दूं, लेकिन तुम लोगों की घुट्टी में अहद शिकनी और दगाबाजी शामिल है। देख लो, तुम्हारे बाप ने मेरी बात न मानकर तुम्हें किस सजा में धकेल दिया है। अब तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो। मैं तुम्हें पार्चा जात में तकसीम करके किसी तिक्के कबाब वाले के हाथ फरोख्त करूंगा। उसे मुझे गाली देना चाहिए, लेकिन अल्फाज होंठों से जुदा होने से पहले ही मैंने उसके थोबड़े पर क्लाशनकोफ का बट मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। अब मुझे उसके हुलिये और सेहत की जरा भी परवाह नहीं रही थी। जब मेरी साहिल मुझे नहीं मिली थी तो मैं इस हिरामी पिल्ले को क्यों सीन कर रखता। मैं फैसल का वो हशर करने वाला था जिसे देखकर चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। राइफल का बट खाने के बाद फैसल का चेहरा लहूलुहान हो गया। उसके हाथ पुष्ट पर आहनी गिरफ्त में थे, इसलिए उसका बस सिर्फ जुबान तक महदूद होकर रह गया था। मैंने उसकी बोलती बंद करने के लिए उसकी नाक को निशाना बनाया और एक जोरदार पंच टारगेट पर जड़ दिया। फैसल के लिए मेरे दिल में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था।
वो इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और बुरी तरह चिल्लाने लगा। मैंने नमकपाशी करते हुए कहा, तुम कैसे मार्शल आर्टिस्ट हो, ये जरा सी तकलीफ भी नहीं सह सकते। मैंने तो सुना है कि तुमने ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखी है और कई गैर मुल्की टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हो। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि तुमने ब्लैक बेल्ट अपनी मेहनत से नहीं बल्कि मैंने मानी है इस अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। खाली जगह पुर करके इस नामुकम्मल जुमले को अपनी जरूरत के मुताबिक संगीन से संगीन तर बनाया जा सकता था। वो बिफरे हुए लहजे में गुर्राया, तो मुझे आजाद करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ब्लैक बेल्ट कहां से और कैसे हासिल की। मैं तुम्हारी ये हसरत जरूर पूरी करूंगा। पहले तुम्हारे इन मुतद्दिद वालिद साहबान से निपट लो। मैंने गन की नाल से अकब की में इशारा किया। इधर मेरी बात खत्म हुई, इधर पुलिस मोबाइल पर गोलियों की बरसात कर दी गई। ये दो तरफा फायरिंग थी। मोबाइल के पीछे मुझे वही सुजुकी जीप नजर आई जो जख्मी पेजारों की अयादत के लिए रुक गई थी। उस जीप और हाइलक्स से बेदरेक पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की जा रही थी। यूं महसूस होता था दुश्मन पुलिस वालों को हमारा साथी समझ रहे थे और हमसे पहले उन्हें नेस्तो नाबूद करने पर तुल गए थे। ये एक खुली कानून शिकनी थी। पुलिस वाले भी चूड़ियां पहनकर मोबाइल दौड़ाने नहीं निकले थे। वो अपनी दानिश में खतरनाक मुजरमों का ताकुब कर रहे थे। उन्होंने दो की बजाय एक महाज पर लड़ने का फैसला किया और मोबाइल की रफ्तार घटाकर सुजुकी जीप पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह वो लोग हाइलक्स से होने वाली फायरिंग से महफूज हो गए। हाइलक्स वालों ने अकबी मामलात को यकसर नजरअंदाज करके हमारा ताकुब जारी रखा। देखते ही देखते वो लोग हमसे हाथ से फासले पर रह गए। ये सूरत-ए-हाल हमारे लिए हासी हौसला अफजा थी। अब हमें सिर्फ एक हाइलक्स से निपटना था। पुलिस वालों से पीछा छूटने का एक बड़ा फायदा ये था कि हर किस्म की जवाबदेही से हम बच गए थे। हमारी गाड़ी में एक हथकड़ी लगा जख्मी मौजूद था जिसे हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा रहे थे। अगर हम पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाते तो किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे। पुलिस वालों ने जीप वालों का मुकाबला करने के साथ ही वायरलेस पर हाईरूफ और हाइलक्स के बारे में अपने मर्कज को बता दिया होगा। लिहाजा इस बात के कवी इम्कानात थे कि हमें चारों जानब से घेरा जाएगा। मैंने शहजाद को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अचानक गाड़ी की रफ्तार कम करो मगर इस तरह के हाइलक्स वालों को फायरिंग करने का मौका न मिले। मैं इस लम्हाती फुर्सत से फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ देर मजीद ये चेजिंग जारी रही तो हम मुतद्दिद पुलिस मोबाइल्स के नरगे में आ जाएंगे। पीछे आने वाली पुलिस मोबाइल ने यकीनन हमारे बारे में अपने लोगों को फौरी मुतला कर दिया होगा। मेरी हिदायत के एहतमाम पर शहजाद ने हाई रूफ को सड़क पर बुरी तरह लहराया और वो लेफ्ट टर्न लेकर एक स्टीयरिंग घुमा दिया। मोड़ की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम करना पड़ी वरना हाई रूफ को खतरनाक हादसा भी पेश आ सकता था। हाइलक्स वालों ने भी हमारी तकलीद में गाड़ी मोड़ ली थी। इस दौरान में मुझे हाइलक्स के पहलू में फायरिंग करने का मौका मिल गया। क्लाशनकोव की मोहलक गोलियों ने हाइलक्स की बॉडी को छेड़ डाला था लेकिन सिवाय इत्तफाक के उसके टायर महफूज रहे। अलबत्ता हमारे दरमियान फासला हासा बढ़ गया था। संभलने के साथ ही हाइलक्स से भी हम पर फायरिंग की गई। हम फायरिंग की जद से बाहर थे, चुनांचे हमें और हमारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये तो जहन्नम की बलाओं की तरह हमारे पीछे लग गए हैं। शहजाद अकलनुमा आईने में निगाह डालते हुए बड़बड़ाया। फैसल जहरहन लहजे में बोला, मैं तो पहले ही तुमसे कहा था मेरे आदमी जहन्नम तक तुम्हारा ताकुब करेंगे। अब भी वक्त है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो गाड़ी को रोक दो। मैं अपने आदमी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। फैसल के आखिरी जुमले से इत्तमाद झलकता था। लगता था कि उसने सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए खुद को संभाल लिया था और इस वक्त उसका दिमाग बड़ी ही तेजी से काम कर रहा था। मैंने गुस्सीली नजर से उसे देखा और कहा कि अपने वादे से फिर तो नहीं जाओगे? कौन सा वादा? सिफारिश वाला वादा। वो शक अमीज नजर से मुझे देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? शहजाद के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए सड़कें बदल रहा था। जब वो हियाबान इत्तेहाद पर आया तो मैंने कहा, इस सड़क को नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें मजीद हदायत बाद में दूंगा। हियाबान इत्तेहाद हासी वसी और कम मसरूफ सड़क है। इस पर मुझे बारहा सफर करने का मौका मिला था। सी व्यू से कश्मीर कॉलोनी तक इस पर बेदरे गाड़ी दौड़ाई जा सकती है। मैंने अपने अकब में हाइलक्स का जायजा लिया। वो लम्हा ब लम्हा फायरिंग करते हुए हमारे करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। शहजाद भी हाई रूफ को उड़ाने की कोशिश में था। ताकुब करने वाली गाड़ी पर तवज्जो मरकूज रखते हुए मैंने फैसल से मुखातिब होकर कहा और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम और तुम्हारा बाप कितने बेवकूफ हो। ये बात तुम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगी। मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम लोग अव्वल दर्जे के यार और वादा खिलाफ हो। तुम्हारे बाप से जो डील होने वाली थी उसके नतीजे में मैं तुम्हें उनके हवाले करने वाला था, लेकिन अब तुम उसका नतीजा देख लो। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारा और साहिल का तबादला दयानतदारी से हो जाता तो
इस कार चेजिंग की नौबत थी ना आती। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ और अवाकब का और जवानब का जायजा लेने के बाद कहा, लेकिन तुम्हारा बाप खुद को बहुत ही सियाना और ताकतवर साबित करना चाहता है। वो मुकर्रर वक्त पर साहिल को पार्क में पहुंचाए बगैर तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है और तुम इस वक्त मेरा निवाला बने हुए हो और तुम्हारा बाप ये निवाला मुझसे छीनने के लिए कोशिश कर रहा है और मेरे जबड़ों में हाथ डाल दिया उसने। मैंने क्लाशनकोफ की नाल से उसके सर के अकबी हिस्से पर दस्तक दी और बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तुम लोगों की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ। वो झुंझलाहट अमीज लहजे में बोला। मैंने उसके साथ असाबी खेल जारी रखते हुए कहा, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम गाड़ी रोक दें तो तुम अपने लोगों से हमारी सिफारिश करोगे और वो हमें टेढ़ी नजर से देखेंगे भी नहीं और बाहुशी हमें जाने की इजाजत दे देंगे और उसे घिसने में कोई हर्ज नहीं था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो गाड़ी रुकवा कर देख लो। फैसल ने कहा, क्या हाल है शहजाद? मैंने अपने अकब में हाईलक्स पर निगाह जमाते हुए सरसरी लहजे में कहा, इसके बाप को तो आजमा लिया, इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। वजदान, ये तुम क्या कह रहे हो? शहजाद के लहजे में उलझन थी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसकी बातों में ना आओ। जाहिर है फैसल की बात मानना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लो भाई फैसल मेरा साथी नहीं मान रहा, मैंने मायूसी से कहा। वो दांत किचकिचाते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम लोग मुझे साबी तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक एक को देख लूंगा। तुम ज़हनी, जिस्मानी और असाबी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लिहाजा ऐसी कोशिश में हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अगर शहजाद मान जाता तो मैं तुम्हें अपनी बात का सबूत दे लेता। वो जबान से कुछ नहीं बोला, बस खूनहार नजर से मुझे घूरता ही रह गया। ओ माय गॉड, उस शहजाद की घबराई हुई आवाज उभरी। मैंने बेहतियार पलटकर विंड स्क्रीन के पार देखा और परेशान होकर रह गया। सामने सड़क पर एक गंभीर उलझन पैदा हो चुकी थी। बाएं जाने वाली साइड स्ट्रीट से एक वाटर टैंकर निकलकर रोड पर आ गया था। तशवीशनाक बात यह थी कि वो टैंकर रोड पर रुक गया था। इस तरह के हम वहां से गुजर नहीं सकते थे। टैंकर का अगबी हिस्सा साइड स्ट्रीट को इस तरह घेरे हुए था कि गाड़ी को स्ट्रीट पर मोड़ा नहीं जा सकता था। हमें हर सूरत में रुकना था या फिर हाई रूफ को टैंकर से टकराना था। इसी लम्हे मेरी छठी हिस्स ने पुकार कर कहा कि वो वाटर टैंकर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत सड़क पर लाकर हमारी राह में रुकावट पैदा की गई है। इससे यह भी साबित हुआ कि बड़े ही वसी पैमाने पर हमें छापने की कोशिश की जा रही थी। हमारे लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। ये तमाम ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और इससे पहले कि हाई रूफ और वाटर टैंकर के दरमियान फासला 0 के बराबर रह जाता, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, शहजाद गाड़ी को रोक लो। उसके साथ ही मैंने बड़ी सूरत से अपनी जेब से हथकड़ी की चाबी निकाली। उस वक्त मेरा जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने अकब में आने वाली दुश्मन हाईलक्स को एक सरसरी नजर से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। उस तरफ से हमारे रुकने की सूरत में फायरिंग का खतरा नहीं रहा था। वो हमें रोकने के लिए ही तो अपनी गन्नों को जहमत दे रहे थे। कत्लो गारतगरी उनका मकसद अव्वल नहीं था। इस तरह फैसल की जान की जमानत न रहती। ऐसी हिमाकत वो किसी सूरत में नहीं कर सकते थे। मैंने हाई रूफ रुकने से कबल चंद सेकंड के वक्फे में फैसल की हथकड़ी पर पलक झपकने में कार्रवाई की और एक हाथ की आहनी हथकड़ी खोल दी। अगले ही लम्हे फारिग होने वाली कड़ी को मैंने सीट की अकब में नसब एक पाइप से मुंसलिक करके लॉक कर दिया। अब फैसल एक तरह से इस पाइप से बंधा हुआ था और अपनी मर्जी से गाड़ी को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने ये काम हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर किया था ताकि पेश आमदा अफरा तफरी में वो फरार होने की कोशिश न करे। टायरों की तेज चिरचिराहट के साथ हाई रूफ रुक गई। अकब में आने वाली हाईलक्स ने हमारी तकलीद की और चंद गज के फासले पर ठहर गई। फिजा में चंद लम्हात के लिए सन्नाटा छा गया। लगता था कि वक्त चंद सानियों के लिए थम गया हो। वो बड़ी ही मोहलक और खौफनाक घड़ियां थीं। शहजाद ने स्टीयरिंग छोड़कर दूसरी के संभाली और सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने सफाकी से कहा, तुम इस हरामजादे को गन पॉइंट पर रखो। जब तक ये हमारे कब्जे में है वो लोग हमें फायरिंग का निशाना नहीं बनाएंगे। मैं इनसे निमटने की कोशिश करता हूँ। तुम अकेले ही क्यों कोशिश करोगे? शहजाद ने जीदारी से कहा, ये नामुराद तो गाड़ी के अंदर फिक्स हो चुका है। मैं भी क्यों ना तुम्हारा साथ दूं? इसका मौका आया तो जरूर अपनी ख्वाहिश पूरी करना। मैंने कहा, फिलहाल फैसल पर तवज्जो मरकूज रखो। फिजा पर तारी होने वाला सकूत लम्हाती साबित हुआ। हमारी इस गुफ्तगू के दौरान ही मैंने हाईलक्स के अकबी हिस्से में से 4 गनबरदार उछलकर नीचे उतरते देखे। फिर वो हाई रूफ को निशाना पर रखते हुए चंद कदम आगे आने के बाद रुक गए। उसी वक्त हाईलक्स के अगले हिस्से में एक लहीम शहीम शख्स बरामद हुआ। दराज कामत और गोरे चिट्टे शख्स के हाथ में पिस्टल नजर आ रहा था। उसने गाड़ी से बाहर आने के बाद अपने मुसल्ला साथियों को एक महसूस इशारा किया, फिर हमारी जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। हाईलक्स में से नमूदार होने वाले के स्टाइल से लगता था वो अपनी दानिश में हमें जेर कर चुके थे। मैंने इसी खुशफहमी में मुब्तला रखा और शहजाद के चेहरे पर
देखते हुए कहा और उसके नजदीक जाते हुए कहा, मैं इस मोटे को बातों में लगाता हूँ, मेरा अंदाज सरगोशियाना था। इस दौरान में तुम गाड़ी को बैक गियर में डालकर तेजी से पीछे लाने की कोशिश करो, यह आइडिया फौरन ही मुझे सूझा था। ये बहुत ही खतरनाक होगा वजदान, वो दोबारा स्टीयरिंग संभालते हुए बोला। मैंने कहा, खतरनाक और मुफीद सोचने का वक्त नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे ही करो। जैसे ही मैं मोटे से बातचीत शुरू करूँ तुम गाड़ी को इस अंदाज में पीछे लाना जैसे इन सबको रोन डालने के बाद डायरेक्ट हाई लेग्स हिट करना चाहते हो। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था और मैंने गन का रुख मोटे की तरफ करते हुए कहा, फिर तुम हाई रुफ को तूफानी अंदाज में मोड़ते हुए वापसी के रास्ते पर डाल दोगे। ओके बॉस, शहजाद ने चटानी लहजे में कहा। ये एक खतरनाक चाल थी जो इंतहाई मोहलिक साबित हो सकती थी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इस बात का मैं बखूबी अंदाजा लगा चुका था। फैसल की वजह से हमें वो अंधाधुंध फायरिंग का निशाना नहीं बनाना चाहते थे, वरना वो अब तक हमें गोलियों की बाढ़ पर रख चुके होते। वो फैसल की सलामती के लिए हमें ग्रीस दे रहे थे। अभी वो मोटा पिस्तौल बरदार हायरूफ से चंद कदम दूर ही था कि फैसल ने एक अजीब हरकत की। वो खिड़की से मुंह बाहर निकालकर मोटे को खबरदार करने लगा, गाड़ी के नजदीक ना आना, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करो। मैंने हालात बिगड़ते देखे तो शहजाद को आंखों में एक्शन का इशारा दे दिया। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में डाले तैयार बैठा था। फैसल की चीहो पुकार पर मोटा चौंका, उसकी समझ में नहीं आया रुकिए हाई रुको, वो किस तरह रोकने की कोशिश करे। लेकिन जब तक वो फैसल की बात के महफूम तक पहुंचता शहजाद उन पर चढ़ाई कर चुका था। हायरूफ तोप से निकले हुए गोले की तरह पीछे बढ़ी। उसका पहला निशाना वो मोटा ही बना। मैंने 4 गनबरदार अफराद के कदमों में फायरिंग की। वो इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर गड़बड़ा गए और जवाबन बेदरेग हम पर गोलियां बरसाने लगे। हायरूफ चूंकि हरकत में थी लिहाजा उनकी गन्नों से फायर होने वाली गोलियां गाड़ी की बॉडी में लगी। शहजाद ने किसी बात की परवाह किए बगैर हैरान परेशान अफराद को रोन डाला और हाइलक्स को एक जोरदार टक्कर मारने के बाद स्टीयरिंग को वापसी के लिए घुमा दिया। मैं इस दौरान में चुकन्ना नजर से मैदान जंग का जायजा ले रहा था। मैंने देखा कि हमारी राह खोटी करने वाले वाटर टैंकर में से 2 गनबरदार निकलकर अपने साथियों के साथ शामिल हो गए थे और इस गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। वो हर मुमकिन तौर पर हमें रोकने की कोशिश करने लगे। हाइलक्स तूफानी टक्कर खाने के बाद अपने कदमों पर ठहरी नहीं थी और थोड़ा सा सड़क पर पीछे सड़क गई थी, तो शहजाद के लिए आसानी पैदा होगी। और उसी वक्त मैंने हाइलक्स के टायरों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। गाड़ी को फ्लैट होने में देर नहीं लगी। अब वो हमारे ताकुब के काबिल नहीं रही थी। मैंने अपने अकब में देखते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाई। मकसद इन्हें हलाक करना नहीं था, मैंने शदीद जख्मी करके ताकुब से रोकना चाहता था। इसलिए मैंने गन की नाल नीचे रखते हुए उनके जिस्मों को निशाना बनाने की कोशिश की। नतीजे में करबनाक इंसानी चीखों से फिजा गूंज उठी। हमारी हायरूफ पहले ही दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी से रोन डालकर आगे बढ़ चुकी थी। इस फायरिंग ने तो क़यामत ही बर्पा कर दी। मोटे और उसके चारों गनबरदार साथी पर बुरा वक्त आन पड़ा। वाटर टैंकर से नमूदार होने वालों ने उन्हें कवर दिया और हमारी गाड़ी को निशाना बनाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश में था, ताहम मद्दे मुकाबल से जो कदरे संभले हुए थे वो हम पर फायरिंग कर रहे थे। फिर से पहले कि शहजाद गाड़ी को वापसी की राह पर डालता, एक खौफनाक धमाके से फिजा लरस कर रह गई। उसके साथ ही फैसल की तेज चीख सुनाई दी। मैंने पलटकर अकब में देखा तो एक वहशतनाक मंजर से सामना हुआ। हाइलक्स आग का गोला बनी नजर आ रही थी। शायद इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कोई मनचली गोली उसके फ्यूल टैंक से जा लगी थी, या मुमकिन है कि गाड़ी का कोई और हिस्सा फायरिंग की जद में आ गया हो। ऐसी ही एक शरीर गोली ने फैसल के कंधे पर भी बोसा दिया था और वो अपना बाजू झटकते हुए होले होले कराहने लगा। अफसोस कि इस वक्त वो अपने आधा जख्मी बाजू उसको थामने की पोजीशन में भी नहीं था। थामने वाला हाथ तो आहनी जकड़ में था। आज आहन के इस खूनी मंजर को पीछे छोड़ते हुए हम काफी दूर निकल आए। इस लम्हाती कार्रवाई के दौरान में 3 गाड़ियां हमारे पीछे हाथ से फासले पर रुक गई थीं और हासी शशोपनी में थी, लेकिन लोगों में से किसी ने कोई मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। पराई आग में कूदना किसे अच्छा लगता है। शहजाद उस वक्त रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा था। मैंने गंभीर लहजे में कहा, गाड़ी को किसी साइड स्ट्रीट में मोड़ लो और रास्ता बदलकर बंगले पर पहुंचने की कोशिश करो। वो मेरी हिदायत पर अमल करते हुए बोला, कौन सा बंगला? जहां हमें मिशन की तकमील के बाद जाना था। उसके बाद शहजाद ने कोई सवाल न किया। फैसल की दबी दबी कराहें गाड़ी में उबर रही थी। मैंने उसके जख्मी कंधे का जायजा लिया। शरीर गोली ट्राइसेप मसल में घुस बैठी थी। ट्राइसेप कंधे का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उसके अकब में जोड़ की हड्डी वाक़या होती है। मुझे अच्छा था गोली ने इसके बाजू की हड्डी को बुरी तरह मुतासिर किया था। शुरू में उसने जख्मी बाजू को 1-2 मरतबा झटका था, लेकिन अब वो किसी तरह की माने लटका हुआ था, बेजान और मौत तलसा। मैंने नमकपाशी करते हुए कहा, ओ मिस्टर ब्लैक बेल्ट, तुम तो बहुत ही बौधे साबित हो रहे हो। एक जरा सी चोट पर औरतों की तरह तस्वीर बहाने बैठ गए।
वो कोई जवाब देने की बजाय नापसंदीदा नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने जहरीला लहजे में कहा, तुम अपने इन्हीं आदमियों से हमारी सिफारिश करने वाले थे ना? देख लो, इन्होंने तुम्हें गोली मार दी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्यारे। मैं उसे तंग करने के लिए छेड़छाड़ से काम ले रहा था। वो मेरे अंदाज को समझ गया, इसलिए किसी किस्म की बहस और तकरार की बजाय नफरत अमेज और इंतकाम अंगेज निगाह से मुझे तकता चला गया। उसकी बेबसी और बेकसी पर मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। रखा वाली के मुतलिकुल अनान चौधरी, नवाजिश का फर्जंदे अर्जुमन, अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था और आगे चलकर इन हालात की नजाकत में मजीद इजाफा होने वाला था। चौधरी ने अपनी चलाकी नुमा हमाकत से बेटे को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। शहजाद गाड़ी को डिफेंस फेज 2 की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाने के बाद अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, इस इत्मीनान के साथ कि किसी दोस्त या दुश्मन ने हमारा ताकुब नहीं किया था। रात का 1 बजा था। मैं इस वक्त मिनहास बाकर के साथ एक कमरे में बंद निहायत ही अहम उमूर पर बात कर रहा था। वो 5 मिनट पहले हैदराबाद से लौटा था। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामिया अल्फाज में उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वो गहरी संजीदगी से मेरी बात सुनने के बाद बोला, चौधरी ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए जो रिस्क लिया, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उसे अपने बेटे फैसल से वो मोहब्बत नहीं जिसका वो दावेदार है। मैंने कहा, मिनहास साहब, शायद आपका वास्ता नवाजिश अली जैसे चौधरियों या वडेरों से नहीं पड़ा। ये लोग इंतहाई शकील कल्ब और सफाक होते हैं। बाज़ वो इतनी खतरनाक बाजी खेलते हैं कि अपने ही प्यारों को दांव पर लगा देते हैं, जैसा कि चौधरी नवाजिश ने फैसल के मामले में सबूत दिया। मैं इस चौधरी के बच्चे की जिंदगी खराब कर दूंगा। मैंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, ये आखिरी धोखा है जो मैंने इसे सिखाया है। मेरा रद्द-ए-अमल इसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। मिनहास ने कहा, मैं इसे तुम्हारी जुज़वी कामयाबी कहूंगा कि तुमने फैसल को हाथ से निकलने नहीं दिया। जब तक वो तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हें चौधरी पर बरतरी हासिल रहेगी। हमने बंगले पर पहुंचते ही फैसल को दोबारा उल्टी हथकड़ी पहना दी थी। इस मौके पर शहजाद ने अच्छी खासी मुरम्मत भी उसकी कर डाली थी। बादशाह हमने उसे एक बाथरूम में बंद कर दिया था। मैंने मिनहास को इसके बारे में बता दिया था कि फैसल को मुस्तकिल तौर पर इस बंगले में रखना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। लिहाजा मैंने मिनहास से कहा, जनाब, ये बंगला आपकी रिहाइश का है, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बंगले को हम अपनी कार्रवाइयों में किसी हवाले से इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में फैसल को कहीं और मुंतकिल कर देना चाहिए। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, वो गहरी संजीदगी से बोला। तुम्हारे दोनों दुश्मन चौधरी और गौरी ये बात जानते हैं कि मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट दे रहा हूँ और तुम इन लोगों को फैसल की झलक दिखलाकर गायब हो गए हो। इस बात से बहस नहीं कि पार्क से मैं इत्तेहाद तक ताक़ू करने वालों का ताल्लुक चौधरी नवाजिश से था या शोएब गौरी से या फिर दोनों के मुश्तरका आदमियों से। हर सूरत में वो लोग आपस में दोस्त और हमारे दुश्मन हैं। वो लोग अपनी नाकामयाबी और झंझलाहट को मिटाने के लिए इधर का रुख कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर देता हूँ और इसके साथ ही फैसल के किसी मुनासिब बंदोबस्त के बारे में भी सोचता हूँ। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, मिनहास साहब, एक बात तो तय है, मेरी साहिल यहीं कराची में मौजूद है। मैं अपनी कोशिश से उस तक पहुंचना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी निगाह में 2 टारगेट हैं। मैं बारी बारी उन्हें हिट करने का इरादा रखता हूँ। उसे चौंक कर मुझे देखा और पूछा कि कौन से हैं 2 तुम्हारे टारगेट? जेडी मलिक और गुलाम जिलानी। इन दोनों अफराद के बारे में मिनहास भी अच्छे से जानता था। उसकी पेशानी पर तफक्कुर के आसार पैदा हुए। गहरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारे दोनों ही टारगेट नहायत अहम हैं। एक का ताल्लुक शोएब गौरी से है और दूसरे का चौधरी नवाजिश अली से। तुम पहले किसे हिट करना चाहते हो? मैंने जवाब देने से पहले उसे चौधरी से होने वाली आखिरी मुख्तसर गुफ्तगू के बारे में बताया। चौधरी ने जेडी मलिक के जिक्र पर जिस हैरत का इजहार किया था, उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि ये शख्स उसके लिए बहुत ही अहम है। वासिक तवक्का यही है कि जेडी मलिक जहन्नम मकानी मियां जाहिद हुसैन की जगह काम कर रहा है। मैंने सांस लेने के लिए जरा तवक्कुफ किया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं पहले जेडी मलिक की गर्दन नापना चाहता हूँ। दुश्मनी के हवाले से उसका पहला हक बनता है। अगर चौधरी नवाजिश अली ने शोएब गौरी से साहिल को वापस ले लिया है तो इस बात के कभी इम्कानात है कि वो जेडी मलिक की तहवील में हो। गुलाम जिलानी मेरा सेकंड ऑप्शन है। चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद मिनहास ने मुझसे पूछा, इस मार का राय से वापस लौटने के बाद चौधरी से तुमने राब्ता किया है? अभी नहीं। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, पहली फुर्सत में उसे फोन करो और उसे खुली धमकी बेनुक्स सुना डालो। मुमकिन है कोई नई बात सामने आ जाए। मिनहास ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, तब तक मैं फैसल की मुंतकली के बारे में सोचता हूँ। फिर वो इस कमरे में रखे हुए फोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम इसे इस्तेमाल में लाओ। मैं दूसरे फोन से काम चलाता हूँ। फिर वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया।
दूसरा फोन उसी मज़कूरा कमरे में था। मैंने मिनहास के मशवरे को अमली जामला पहनाते हुए मोजा रखा वाली में चौधरी नवाज अली का नंबर डायल किया। डायलिंग मुकम्मल हुई तो पहले ही घंटी पर फोन अटेंड कर लिया गया। उजलत के नतीजे में लाइन कट गई। लगता था कि दूसरी तरफ कोई फोन के रिसीवर पर हाथ रखे बैठा घंटी बजने का इंतजार कर रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन दोबारा डायलिंग के सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने इस कोशिश को दोहराया। इस मरतबा दूसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। फिर मेरी समात पर एक बुखलाई हुई आवाज ने दस्तक दी। मैंने उस परेशान हाल आवाज को पलक झपकने में पहचान लिया। वो मोटी खाल वाले चौधरी नवाज अली की आवाज थी, जिसकी हालत इस वक्त हासी पतली हो रही थी। उसकी बिखरी हुई हेलो के जवाब में मैंने जहरीले लहजे में कहा, चौधरी खुद को संभालो, अभी तो खेल की इब्तिदा हुई है। अगर तुम इतनी जल्दी हाँफने लगे तो मुकाबला कैसे जारी रख सकोगे? तुम पहले राउंड में ढह जाओगे, जबकि मैं आखिरी राउंड तक जाना चाहता हूँ। तुम अपनी नापाक जबान को बंद करो। वो कता कलामी करते हुए धाड़ा, बताओ मेरा फैसल कहाँ है? दर्दनाक अजाब में मैंने पूरी सफाकी से कहा, मैं पूछता हूँ तुमने इसे कहाँ छुपाया है? वो आल में वहशत में गरजा। मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, तुम ये सवाल करने का हक खो चुके हो। अहद शिकन लोग गर्दन झुकाकर नदामत का इजहार करते हैं, यूं चिल्लाकर इस्तफसार नहीं करते। लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं तुम्हारी फजूल बकवास नहीं सुन सकता, वो मजरूर लहजे में बोला। मुझे फैसल के बारे में फौरन बताओ। तुम अपने बेटे को खो चुके हो चौधरी, हमेशा हमेशा के लिए, मैंने चट्टानी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। अब तुम कभी उसकी सूरत नहीं देख सकोगे। वो जिंदा रहेगा लेकिन हर पल मरने की दुआएं मांगेगा। अहद शिकने की बड़ी सजा होती है। चौधरी नवाज अली, तुमने अपनी होशियारी में बेटे को नाकाबिले बयान मुश्किल में डाल दिया है। अहद शिकनी तो तुमने भी की है। वो जहरहन लहजे में बोला। हमारे दरमियान होने वाले अहद के मुताबिक ठीक शाम 7 बजे फैसल को पार्क के अंदर तयशुदा मुकाम पर होना चाहिए था। मैंने कहा वो पार्क के अंदर ना सही मगर पार्क के बाहर जरूर मौजूद था। ये बात साबित भी हो चुकी है। तुम्हारे बंदों ने इसे मुझसे छीनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी ईंट से ईंट बचा दी। और ये भी सुन लो कि मैंने ये एहतियात क्यों बरती थी। सुना दो, वो फुंकारा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने पार्क में दाखिल होने से पहले तुम्हें फोन किया था। अभी हमारी गुफ्तगू जारी ही थी कि तुमने फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा तुम्हारा नंबर मिलाया मगर तुमने रिसीवर हटाकर फोन अंगेज कर दिया। तुम्हारी बदनीयती मुझ पर खुली तो मैं बिदक गया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा करते हुए कहा, जब तुमने फोन के साथ वो गंदी हरकत की उस वक्त हमारे दरमियान साहिल पर बात हो रही थी। मुझे यकीन हो गया कि तुम साहिल को मेरे हवाले नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारे जहन में कोई और ही खतरनाक प्लानिंग है। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया, जब तक साहिल को अपनी आंखों से पार्क में नहीं देख लूंगा, फैसल को अंदर लाने की गलती नहीं करूंगा। देख लो चौधरी, मेरा अंदाजा कितना दुरुस्त निकला। तुमने साहिल को पार्क में पहुंचाने के सिलसिले में कोई मस्बत अहकाम नहीं दिए, बल्कि फैसल को मुझसे छीनने के लिए तुमने पार्क के बाहर अपने खतरनाक पालतू कुत्तू का जाल बिछा दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।